wird gemacht, normal, passive, wird P2, wurde P2, then ist Gemacht worden. P2, wurden, War gemacht worden. war P2, wurden, wird P2. So this is the structure. After wird there will be phone. This is passive, normal, passive, mit modal. So modal plus P2 werden. Modal Präteritum P2 werden. Then haben plus werden. Okay. Werden und dann modal. So hat gemacht werden, dann kann gemacht werden, konnte gemacht werden, hat gemacht werden können. So modal, infinitive. Und hier hatten, modal, infinitive. And then here werden plus P2 P2. werden können. Was kommt hier? Werden Modal infinitive. So this is the formula. This is the formula. Passive, normal, 5 und hier passive mit modal. And then we have learned when to use phone. For example, if there is a noun, nomen, we will use phone. If there is pronoun, we will use phone. We can also drop it. We can drop it. हाँ, it's up to us. So you can take or you can also drop. It's up to you. If there is man or ये man, we will not use phone. Big no. So ये है rule of phone. फोन का क्या करना है उसका जवाब है ये. So normally the structure is subject plus verb plus object. These are 10 types of modal, right? 1, 2, 3, 4, 5 und dann 6, 7, 8, 9 und 10. 10 types of modal, and then this is the normal structure. Accusative object. Accusative object becomes the new subject. और मैंने आपको बोला था कि क्रॉस मारना पड़ता है हमको. क्रॉस मारना सिखाया था. So this is the new subject plus werden, then or phone plus dative object agent.
you can say dative object, you can say dative agent. That's paid for. You can also say the past subject, old subject, and then paid swipe. Paid for. ठीक है? This is the normal case. But if we don't have accusative object, if we don't have accusative object, or you can say we have dative object, then we will use s. S will be always, माना कि वो accusative object s है. Till here it's okay. Then sometimes it is possible you don't see phone but you see durs. Durs भी दिखता है कभी कभी. For example, die Bomben haben das Haus zerstört. एक्सेप्शनल केसेस नहीं है, बट एक्सेप्शनल केस भी आपको तो बताना पड़ेगा भाई. ये एक्सेप्शनल केसेस हैं. ये सारा स्ट्रक्चर उसी के समझ में आएगा जिसने ऑलरेडी पहले सिस्टमैटिकली अपना पैसिव कर रखा है. सो दी Bomben haben das Haus zerstört when it is not done by some human being. जब ये कोई impersonal ऑब्जेक्ट के द्वारा काम हुआ है. If the task was performed by impersonal object, मतलब यहां पे मैं बोलूं कि यहां पे तो ये काम कोई पर्सन नहीं कर रहा ना. ऊपर वाले सेंटेंस में मैं बोलूं आई ड्रिंक मिल्क तो कोई पर्सन कर रहा है. बट सपोज यहां पे पर्सन नहीं है, बम ने घर को उजाड़ दिया या फिर हवा ने उजाड़ दिया. सपोज हवा ही इतनी तेज चली, बम की भी जरूरत नहीं पड़ी. सो हवा, बम या कोई नेचुरल कोई चीज, या फिर इसको सिंपल बोलना है impersonal. If person is not doing it, in that case we will not use phone, but at the place of phone we will use dus. Now it will be das Haus. Das Haus कौन सा टाइप का सेंटेंस है ये, पहले तो ये बताओ. Present perfect. Present perfect. Yes, because you see here haben und paid zwei. It means type 3. Present perfect. Present perfect. Yes. Type That's the 3. category. Yeah. Yeah, type 3 is present perfect. Of course. So because modal verb is not there, so you can't talk about modal. Yes, sir. It's normal present perfect. So now the sentence will be das Haus ist Horn or Durs? Yes. Dus. Yeah. Durs. Those Bomben. Durs die Bomben Bomben. Gestures. Present. gestört. Zerstört. Not only just gestört, zerstört. Completely तबाह कर दिया गया. Stören is just disturbing, but it is zerstört. Page 5 will be also zerstört. Worden. Special point. Is das klar? Der Wind stört. Sir, is also no. Der Wind और हवा ने क्या बिगाड़ दिया? Paid
पेड़ उखाड़ दिया, देयर विंड, पेड़ उखाड़ने को बोलते हैं umstürzen, या फिर अपसाइड डाउन umgestürzt आएगा। देयर विंड हार्ट den Baum umgestürzt, एक बार चेक कर लेंगे अपन, umgestürzt उखाड़ दिया, अपसाइड डाउन कर दिया उसको, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बन जाएगा, देयर बाउम, ये तो डेन आ रहा है बट इट विल बी देयर, न्यू सब्जेक्ट इन पैसिव। Okay, this was normal, this is passive. Der Baum ist durch den Wind. अब देखो डोर्स आकुजाटिव है तो आकुजाटिव ही आएगा, फोन डाटिव होता था तो डाटिव आता था, सो डोर्स देन विंड umgestürzt वोर्डन। पेड़ जो है हवा के द्वारा उखाड़ दिया गया है, आदमी ने नहीं किया, इट इज इम्पर्सनल, कोई पर्सन ने नहीं किया, सो देन इट विल बी द केस, दस इज डन पासिव। बस यही आएगा, फोन ही आएगा, कभी कभी फोन भी नहीं आएगा और किसी का फोन भी नहीं आए तो फिर दूर से आ जाएगा, ठीक है, बस इतना ही है पैसिव। पैसिव इज ओवर, बधाई हो, आप खुद को चॉकलेट खिला सकते हो आज। एक और बता रही था अच्छा, इसमें एक चीज वो और बतानी है आपको अभी, तो व्हेन पैसिव इज nicht möglich, यस, लास्ट पॉइंट, ओके, इंटरेस्टिंग है, पैसिव भी काफी डिटेल्ड है ना, यस, पैसिव इज nicht möglich, देयर आर सम कंडीशंस, passive nicht möglich, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे पैसिव होगा ही नहीं, कहीं पता चले आप हर सेंटेंस को ट्राई करने लग जाओ। फर्स्ट पॉइंट, Verben mit Fortbewegung, Fortbewegung, Fortbewegung का मतलब है कोई वर्ब मोशन की बात करती है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, जैसे गेहन, गेहन, फारन, ये जितनी भी वर्ब है, यस, गेहन, फारन, वर्ब ही लिख देता हूं सीधा, Fortbewegung का चक्कर में पड़ जाएगा अपना, है ना, सो गेहन, फारन, फ्लीगन, ओके, देन शुरू कॉमन, शुरू गेहन, कॉमन, इस तरह की वर्ड, फालन, जो भी मोशन की बात करती थी ना जो वर्ब, वो सारी आ जाएंगी इसमें, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी ले लो, आप कर सकते हो, जो वर्ब जाइन लेती थी ऐसे कर लो, तो वर्बन मिट Fortbewegung मतलब वर्ब जो मोशन की बात करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात करती है, उनमें पैसिव पॉसिबल नहीं है, उनका पैसिव मत बना डालना। दूसरा, जाइन प्लस एडजेक्टिव, अलग से लिखने की बात नहीं है, हाँ, Fortbewegung, Fortbewegung मतलब आगे मूवमेंट की बात करती हैं, Bewegung इज मूवमेंट, Fortbewegung, Fortbewegung मूवमेंट, Verben mit Fortbewegung, that is gehen, fahren, fliegen. I have not written all, okay, you should understand, because लिस्ट भी बनाऊंगा तो हो सकता है 40 निकले ना, सो याद भी नहीं आएंगी सारी। So join plus adjective, join plus adjective, for example, the gate is closed, the Tür ist geschlossen, the Tür ist offen, right?
सो कंडीशन होगी ना वो अपने आप में, तो उसका क्या बनाएगा, वो तो कंडीशन ही है अपने आप में। जाइन प्लस एडजेक्टिव या फिर कोई और भी दास इज रोट, मान लो कुछ भी जाइन प्लस एडजेक्टिव आए, एग्जांपल द टूअर ईस्ट geschlossen, मतलब वो अपने आप में एक कंडीशन है, इसको सुस्टैंड पासिव बोल देते हैं कि इसका नहीं हो सकता, वो अपने आप में एक कंडीशन है, सुस्टैंड है, राइट। थर्ड थिंग, थर्ड पॉइंट, व्हेन पासिव इज निश्ट möglich, जिस भी वर्ब में कुछ रिसीव करने का मीनिंग आए, रिसीव बोले तो bekommen, besitzen, bekommen, kriegen, haben, erhalten, yes, besitzen, इनका सबका सेंस वो है टू रिसीव। ये वर्ब भी लिख दी मैंने, इन वर्ब में आए तो आपको नहीं करना है, ठीक है। इस तरह की वर्ब आ जाए तो इस bekommen das will, तो इसको बनाने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। haben is to have, जो जहां पे भी haben का मीनिंग आए ना उनका पैसिव नहीं बनाना है, इनका सब का मतलब haben और to possess वो है। क्लियर? ओके। जहां भी विसन, erfahren इस तरह का कोई नॉलेज ग्रहण करने की बात आएगी, विशन erfahren लिख लो आप, इनमें पैसिव पॉसिबल नहीं है। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, रिफ्लेक्सिव वर्बन, रिफ्लेक्सिव वर्ब जहां भी आए, जैसे जिस तरह और इस टाइप की, जिस इंटरेस्ट ना, तो जहां भी जिस वाली वर्ब आ जाए, पैसिव इज नॉट पॉसिबल, passiv nicht möglich, reflexive Verben, ja, zum Beispiel, was noch, जहां भी मेजरमेंट की बात आ जाए, मेजरमेंट बोले तो 10 ist 5 किलो, 3 मीटर, कोई भी नापने वगैरह की बात आ जाए, मेजरमेंट्स 5 किलो, 3 मीटर, 8 किलोमीटर, कोई भी मेजरमेंट की बात आए, dann passiv ist nicht möglich। und was noch, अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊं, पैसिव बनाना आप, ich habe viel Geld, इसका बनाओ पासिव, इसका नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, फिर क्या फायदा, थोड़ी देर बाद में पूछूंगा, अभी तो आपको याद ही है, अभी तो क्या बनेगा, फिर बना दोगे आप देखना। सो जब भी मोडाल वर्ब का पैसिव बनता है, लेकिन जोलन, जोलन और म्योस्टन का, जोलन नहीं, वोलन और म्योस्टन का, वोलन एंड म्योस्टन, मोडाल वर्ब्स में वोलन और म्योस्टन का पैसिव कभी नहीं बनेगा। फिर भी कोई बोले ना बना दो, तो बोल देना नहीं बनता, नहीं, फिर भी अगर बनाना पड़े तो इनको जोलन से बनाते हैं, ठीक है। म्योस्टन और वोलन का पैसिव जोलन से बनाते हैं, नॉर्मली इसका नहीं बनता। चलो इसका बना दो आप तो, आई हैव 3 ब्रदर्स, नहीं आज कैसे बनाओगे, अभी तो नहीं बनाओगे, बाद में बनाओगे आप, बना मत देना इसका। जो भी वर्ब एस से बनती है ना, एस से स्टार्ट होती है, जैसे एस रेगनेट, एस साइंड, एस वेट, एस गिफ्ट, जिसमें भी एस से फिक्स, एस गिफ्ट, एस गेट, एस शाइंड, एस के कॉम्बिनेशन के साथ में आने वाली वर्ब का कभी पैसिव नहीं बनता। कोई कुछ बोल रहा है सर? क्लियर? ओके। अगर aufwachen इस तरह की वर्ब भी
अच्छा वो तो उसमें ऊपर वाले में aufstehen वगैरह तो उसमें ही aufstehen वगैरह तो उसी में आ जाएगा ना, जाइन की उसमें आ जाएगा। अगर कोई आपको बोले कि इसका बनाओ, कोखन का बनाओ, तो बना दोगे क्या? कोखन का, इश्कोख है खीर, इसका बना दोगे? Yes, sir. अगर कोई बोले आपको कि ये वाला एक्चुअली क्या है, इसी में आपकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो गई हैं। ये आपको जब इतने सारे मैं बता रहा हूँ कि इनके नहीं बनेगा तो आप ये मत कह देना फिर बनेगा किसका, बहुत है पर, ठीक है ना, कि आपने देखा इतने सारे एक्सेप्शन आ गए, बहुत का बनेगा बट इनका नहीं बनेगा। जैसे पिघलना है, रेंगना है, ये जाइन वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, तो अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है ना। टू क्रीप और स्मेल सन और ये जाइन की उसमें आ जाएंगे, तो फिर उसी में कवर हो गया, वो अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें पैसिव बनेगा नहीं, बाकी 10 तरह के पैसिव हैं, खूब एंजॉय करो घूम घूम के, है ना। Das ist dann alles, das ist alles für heute in Passiv.